Hello students, welcome to our class. Today we are going to study the main question answers of understanding diversity. Hope you are all aware with the concept understanding diversity. So students, the first question is draw up a list of different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? It means आपने एक लिस्ट बनानी है अलग अलग फेस्टिवल्स की जो आपकी लोकेलिटी में सेलिब्रेट होते हैं और वो सेलिब्रेशंस जो आपके डिफरेंट रीजनल और डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं. यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ दैट डिफरेंट फेस्टिवल्स. So, answer is India is a colorful country where people of all religious backgrounds live harmoniously. The people of different religions celebrate their festival throughout the year. Hindus all over the country celebrate Holi, Diwali, Dashera. Jains celebrate Mahavir Jayanti. Buddhists celebrate Buddha Purnima. Sikhs celebrate Lohri, Baisakhi. Hindus in North India they celebrate Makar Sankranti, while South Indians celebrate the Pongal on the same day. In the Northeast, the people celebrate Bihu, which is spread the delight of spring, while Sikhs celebrate the same days as Baisakhi. Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti, these are national festivals and hence the people of all communities celebrate them. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बहुत ज़्यादा कलरफुल कंट्री है. यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस बैकग्राउंड हैं. हर अलग अलग रिलीजियस के पर्सन्स अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. If we have to make a festivals list, so there are lots of festivals like Holi, Diwali, Dashera, Pongal, Onam. There are lots of festivals which are celebrated togetherly in the country. If I am talking about Hindus, Hindus all over the country celebrate Holi, Diwali, Dashera. If I am talking about Jains, they celebrate Mahavir Jayanti. Buddhism celebrate Buddha's Purnima. एंड सिख सेलिब्रेट लोहरी एंड बैसाखी. सेम जो नॉर्थ के हिंदू हैं वो सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, जबकि सेम टाइम पे साउथ इंडियन सेलिब्रेट करते हैं पोंगल. नॉर्थ ईस्ट के पर्सन्स बिहू सेलिब्रेट करते हैं. सेम साइड पे नॉर्थ में सिख्स बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्वेस्टिंग, हरियाणा पंजाब में हम हार्वेस्टिंग में बैसाखी मनाते हैं या मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन साउथ में बैसाखी यानी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में पोंगल मनाया जाता है. सम आर द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय ईच कम्युनिटीज जस्ट लाइक अ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती. दीज आर द नेशनल फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय ईच एंड एवरी कम्युनिटी ऑफ पीपल. सो here is a different list of all the festivals which are celebrated in our locality or in the complete country in India. Hope you understand this question. So move further for the second question. What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया सबसे ज़्यादा रिच कंट्री है इन द फील्ड ऑफ हेरिटेज एंड ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो वो डाइवर्सिटी आपकी लाइफ में इंक्लूड हो जाएगी? लेट्स फाइंड आउट द आंसर. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, have various types of food, celebrate different type of festivals and practice different religions. We do many things that are similar except
that we do them in different ways. For example, in North India, Hindu New Year is celebrated with the start of Navratri, while Maharashtrians celebrate the same day as a Gudi Padwa. तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एंड इन द कंप्लीट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन इंडिया. वी लर्न द कंसेप्ट विद द टू डिफरेंट रीजन्स, लद्दाख एंड केरल. जस्ट लाइक कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी. इस कंट्री में हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को स्पीक करते हैं, बहुत सारे फूड्स को देखते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे रिलीजियस इंडिया में इंक्लूड है. तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सिमिलर थिंग बट इन अ डिफरेंट वेज. हम सेम चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से. हम सेलिब्रेट तो हार्वेस्ट फेस्टिवल ही कर रहे हैं ना, नेम अलग है. कहीं हम उसे बैसाखी का नाम देते हैं तो कहीं हम उसे पोंगल का नाम देते हैं. नॉर्थ इंडिया में हिंदू न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं जब नवरात्रि स्टार्ट होता है, और वहीं महाराष्ट्रियंस सेलिब्रेट करते हैं गुडी पूर्णिमा से. सो देयर आर लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. सो अगर हम इंडिया में रहते हैं तो वी लर्न फ्रॉम दैट डाइवर्सिटी. क्लियर? नेक्स्ट, question number 3. Do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? क्या आपको लगता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक ऐसी टर्म है जो आपकी पूरी इंडिया को डिस्क्राइब करेगी? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? आपको क्या लगता है कि नेहरू ने क्या बोलने की कोशिश करी यूनिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो उन्होंने अपनी बुक में यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के नेम से इंडियन को डिफाइन किया? द नेम ऑफ हिज बुक इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सो आंसर इज yes. In my opinion, the term unity in diversity is appropriate to describe India. Yes, I agree with the statement. Unity in diversity is appropriate, which describe the India. India's diversity has always been recognized as its strength. इंडिया में डाइवर्सिटी हमेशा ऐसे रिकॉग्नाइज्ड करी जाती है जैसे एक स्ट्रेंथ. ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट द पीपल ऑफ फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स come together and started joint freedom movement to oppose the British rules. फ्रीडम मूवमेंट के दिन बहुत सारे पर्सन्स थे जो अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग रीजन से थे, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड्स से थे. वो सब इकट्ठे आए और उन्होंने जॉइंटली फ्रीडम मूवमेंट में ब्रिटिश के खिलाफ अपना वर्क किया. This strength of unity made it difficult for Britishers to hold on power in India for a longer time. यही एक यूनिटी थी जिसने ब्रिटिशर्स की पावर को ख़त्म किया था. यही एक यूनिटी थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ज़्यादा लंबे टाइम तक इंडिया पर अपना होल्ड नहीं कर पाए. ऑल्सो द सेम नेशनल फ्लैग वॉज यूज्ड एज अ मीन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एवरीवेयर. सेम नेशनल फ्लैग भी यूज़ किया गया ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और हर जगह ये फ्लैग यूज़ हुआ. इन हिज बुक, नेहरू जी ने अपनी बुक में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से दैट द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग imposed फ्रॉम आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग deeper and within its fold. The wideness tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. डिस्कवरी ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इंडिया में जो यूनिटी है वो कोई हमने इम्पोज नहीं करी है, किसी ने बाहर से आके यूनिटी नहीं डाली है. ये
एक डीपर विद इन फोल्ड है जो इंडिया के अंदर ही है। ये कस्टम बिलीव्स, हम हर पर्सन इस कस्टम बिलीव्स को मानता है, प्रैक्टिस करते हैं, और यही हमें इनकरेज करते हैं यूनिटी के लिए। तो बच्चा, अगर हम जोग्राफिकली अलग हैं, हम लैंग्वेज के वाइज अलग हैं, कल्चरल के अकॉर्डिंग डिफरेंस है, बट वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल हैव सम ट्रेडिशंस टू फॉलो। सो आंसर देयरफॉर, despite having a geographical, language and cultural difference, the people of India are living in a peace with respect for each other traditions and with unity. हम इंडिया में हर पर्सन यहाँ सरवाइव करता है, सब पीस में रहते हैं, सबको एक दूसरे के ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, यूनिटी को देखना है। होप यू ऑल क्लियर द क्वेश्चन नंबर 3. Next, question number 4. Underline the line in the poem sang after Jallianwala Bagh massacres, which according to you reflect India essential unity. जो पोयम जलियांवाला बाग के बाद गाई गई थी, जो हम अपने चैप्टर में भी हमने कवर की थी, उसमें कहाँ पर ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है कि इंडिया एक यूनिटी कंट्री है, यूनाइटी कंट्री है? सो आंसर इज The blood of Hindus and Muslims flows together today. आज हिंदू और मुस्लिम का खून एक साथ बहा है. This line in the poem sang after the Jallianwala Bagh massacres reflects India's essential unity. जहाँ पर कहा गया ना हिंदू और मुस्लिम का खून इकट्ठे बहा है, यहाँ इंडियन यूनिटी को डिस्क्राइब किया गया है. क्यों? क्योंकि हमने इकट्ठे काम किया है. आज हिंदू मुस्लिम हम अलग कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डिफरेंट. दे ऑल आर पर्सन ऑफ, दे ऑल आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री. द नेम ऑफ कंट्री इज इंडिया. आज उनका खून इकट्ठे बह रहा है. इट मीन्स वी आर अ यूनाइटेड कंट्री. दिस लाइन फ्रॉम द पोयम डिस्क्राइब द यूनिटी ऑफ इंडियंस. The line is the blood of Hindus and Muslims flow together today. Clear? Move further for the question number 5. Choose another region in India and do a similar study of historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? आपको कोई भी रीजन लेना है जो बिल्कुल उसमें एक सिमिलर स्टडी करनी है हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स की, और ये बताना है कि क्या उन फैक्टर्स से डाइवर्सिटी है और हिस्टोरिकल जोग्राफिकल फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. अगर हैं तो कैसे? सो आंसर इज, रीजन हमने ली है लद्दाख. जोग्राफिकल फीचर्स, Ladakh is a desert in the mountains of the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rainfall and this covered in a snow for a large part of years. There are a few trees that can grow in this region. For drinking water, the people depend on melting snow ड्यूरिंग द समर मंथ. तो हमारा फर्स्ट रीजन है लद्दाख. सो शैल वी स्टार्ट विद द जोग्राफिकल फीचर्स. अगर मैं लद्दाख के जोग्राफिकल फीचर्स की बात करूं तो लद्दाख एक डेजर्ट है माउंटेन्स का, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट पार्ट में है. स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी है and second union territory from the same place is Ladakh, जो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड में, जहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर होता है. रीज़न क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ पर पूरा एरिया कवर्ड है स्नो से. स्नो मीन्स बर्फ़ से. वहाँ पर बहुत कम ट्रीज़ हैं. ओनली दैट ट्री विच कैन सर्वाइव इन द स्नो सिनेरियो, जो स्नो में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बस वही ट्रीज़ हैं.
अगर आप वहाँ पर हो तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको डिपेंड होना पड़ता है मेल्टिंग स्नो पे। जब स्नो मेल्ट होगी तभी आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। दिस वन इज़ अ ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ लद्दाख एंड हिस्टोरिकल फीचर्स। Ladakh was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. लद्दाख को बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेस माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कारावेंस है जो तिब्बत के थ्रू यहाँ से पास होती हैं। These caravans carried textile, spices, raw silk and carpet. ये कारावेंस अपने साथ टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मसाले, सिल्क और कारपेट्स को लेकर मूव करती हैं तिब्बत की ओर। बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत से आए थे लद्दाख में। लद्दाख को ऑल्सो दिस यूनियन टेरिटरी इज़ ऑल्सो नोन एज अ लिटिल तिब्बत। Islam was introduced in this region more than 400 years ago. Ladakh is a very rich oral traditions of song and poem. लद्दाख को हम एक बहुत अच्छा रूट मानते हैं जहाँ पर बहुत सारे पासेज हैं जिससे हम कैरावेंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पास करते हैं। यहाँ पासेस का मतलब होता है द एरिया विच फ्रॉम वेयर वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and passes is the area which is moved through the mountains. कैरावेंस हैं जो टेक्सटाइल स्पाइसेस को लेकर जाती हैं और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोला जाता है जहाँ पर बुद्धिज़्म आया जो तिब्बत से लद्दाख में आया, इस्लाम आया जो यहाँ पर 400 साल तक सरवाइव किया। उसके बाद लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है songs and poem में। There are lots of songs and poems which are sung in the region Ladakh. Hope the first area is clear to you all. Move further to the second area. The region is Kerala. Geographical features of Kerala is situated in the southwest corner of India. It is surrounded by sea on one hand and hills on the other hand. It has a wet and maritime tropical climate influenced by the seasonal heavy rains. The western coastal belt is relatively flat compared to the eastern region and has many lakes and canals. Geographical features के according केरला साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के और ये एक साइड से सी यानी समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी साइड से हिल से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट टेम्परेचर है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बाय प्लेस है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीजनल रेनफॉल होती है। वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट में ये एरिया कवर होता है और ये बिल्कुल कंपेयर किया जाता है ईस्टर्न रीजन से, वहाँ के लेक्स एंड कैनल्स। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल फैक्टर्स। होप यू आर क्लियर विद द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ केरला। हिस्टोरिकल फैक्टर्स ड्यू टू द कोस्टल एरिया export and import were prevalent and thus there are many people from many religions. Jewish and Arab traders were the first to come here. The people of different religious background can be found in Kerala. Hindus, Islam, Judaism, Buddhism and Christianity are the majority found in Kerala. केरला में बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया है तो सी के नियर बाय है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यानी कि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ज्यूश और अरेब ट्रेडर्स आए थे। उसके अलावा अलग अलग रिलीजियस आ गया जिनका अलग अलग बैकग्राउंड था, जस्ट लाइक हिंदूज़्म आए, इस्लाम आए, जुडाइज़्म आए, बुद्धिज़्म आए, क्रिश्चियनिटीज़ आए। उसके बाद द फेस्टिवल लाइक ओनम, ईद,
Christmas, etc. are celebrated in the Kerala. The fertile land and the climate are suited to grow rice, and majority of people here eat rice, fish and vegetable. ओनम, ईद, क्रिसमस, इस तरह के सारे फेस्टिवल इस एरिया में मनाए जाते हैं। इसके बावजूद इसका एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। द रीज़न बिहाइंड इट, द लैंड इज़ नियर बाय द सी। तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस में राइस को ग्रो किया जाता है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स हैं जो राइस खाते हैं, फ़िश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई वेजिटेबल, कोई क्रॉप ग्रो होती है तो वो है राइस। तो ये सी के नियर बाय है, तो फिशिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है, तो फिशिंग भी ये खाने में खाते हैं। सो होप यू क्लियर विद द केरला एंड लद्दाख। Though the Ladakh and Kerala are located in extreme different location and have different historical and geographical interference altogether, but both the places have similar religious practices and people of different religious live peacefully here. तो अगर हम कंपैरिजन करें लद्दाख एंड केरला का, तो दोनों ही लोकेशन अलग अलग प्लेस पे है। लद्दाख नॉर्थ में है तो केरला हमारा साउथ में है। दोनों का जोग्राफिकल फीचर्स बिल्कुल अलग है। लद्दाख माउंटेनियस एरिया है और केरला पेनिसुला एरिया, और वी कैन से अ कोस्टल प्लेन। हिस्टोरिकल की बात करें तो लद्दाख में अरेबियंस आए थे तिब्बत के थ्रू, जबकि केरला में ज्यूश आए, बुद्धिज्म आए, जैनिज्म आए। So there are lots of difference between the Ladakh and Kerala, but the one thing which is remaining, all are Indians. दोनों places पे religious अलग हो सकते हैं, but religious practices same है। दोनों में अलग अलग religious follow होते हैं, but दोनों ही अपनी जगह पे हर religious को peacefully follow करते हैं। They all are easily celebrate all the festivals with each other. They all are happy, and that is known as unity of diversity. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा unity of diversity है। Hope you all are aware with the question answers, and I hope आपको इस सारे question answers clear हो गए होंगे। Hope you all understand all the questions given in the chapter. So meet you in the next video. Thank you students and have a great day.